Good evening, everyone. In this video lecture, we are going to talk about World Trade Organizations. In the last week, we talked about United Nations, its different functions of United Nations, and specialized agencies of United Nations, and then we talked about World Health Organizations. So, in the latest of International Organizations series, we are not now moving to World Trade Organizations. We will cover this lecture under 5 different sub aspects of World Trade Organization. First, we will talk about the historical background of World Trade Organization, how it came into existence in 1995, because it was World Trade Organization was conceptualized along with World Bank and International Monetary Fund in 1945, but there is a whole journey of evolution why member countries of United Nations and World Bank didn't agree in 1945 for an international trade organizations. So it took 45 years, more than 45 years, to form global trade organizations. So we will try to understand that historical background first. Second, we will try to understand the basic understanding of World Trade Organization, what it is, and what is the goal of World Trade Organization. Third, we will understand the fundamental principles of functioning of World Trade Organization, how it functions, what are the basic principles which member countries has to follow in order to be the member of World Trade Organization. Fifth, we will understand the World Trade Organization's basic conferences, ministerial conferences, and some of the important conferences we will discuss in brief, like Doha Summit. Fifth, most important aspects, we will try to throw some light on the issues which currently are being discussed in World Trade Organizations, because there are some aspects of global trade which are still not finalized or agreements hadn't happened. So we will try to throw some light. What are those regions and what are those issues that WTO is still trying to solve? We will understand under this section. So first, we will start from the historical background. Try to understand the basic understanding of World Trade Organizations. So, in the last time, I talked about the United Nations, how United Nations came into existence in 1945-46 after the Second World War. But there were some challenges in front of the world after the Second World War. After the Second World War, the world faced some challenges, some political challenges, some security challenges, some economic challenges. In terms of economic challenges, we are trying to understand historical background of World Trade Organization. So after the Second World War, these are the economic challenges. First challenge was infrastructure building. Second was monetary stability. Third was
fair and free trade. मैंने यूनाइटेड नेशंस वाले टॉपिक्स पे ये डिस्कस किया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो रीजन्स थे, कॉजेस थे, उनमें ये भी शामिल था कि ट्रेड कॉलोनिज्म, जो इकोनॉमिक कॉलोनिज्म था, उसमें एक बहुत बड़ी चैलेंजेस ट्रेड का भी था। जो पावरफुल कंट्रीज थे वो चाहते थे कि ट्रेड उनके फेवर में रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया। और कॉलोनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन था दो वर्ल्ड वॉर्स के लिए। वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात आई तो उसमें यह भी एक इश्यू आया कि हमें ट्रेड को फेयर और फ्री रखना है। फेयर एंड फ्री ट्रेड का मतलब है विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर पावरफुल एंड डोमिनेंट कंट्रीज बट फ्री एंड फेयर फॉर ऑल द कंट्रीज। तो उसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा तो हमारे सामने 3 चैलेंजेस हैं। पहली चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। लगभग 50% और मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड वाज डिस्ट्रॉयड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर। सो हमें जरूरत थी कि हम एक ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं जिसके फंड का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में किया जा सके। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर we may form World Bank, which we will discuss in the next topic, next lecture, that how World Bank functions and all. In order to establish the monetary situation, we formed IMF, International Monetary Fund. Monetary stability का मतलब ये था कि ग्लोबल मार्केट में क्योंकि हर कंट्री की मॉनेटरी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो हमने ये आईएमएफ को बनाया कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी की वजह से, अलग अलग एक्सचेंज रेट की वजह से जो लिक्विडिटी का इम्बैलेंस बना रहता है वर्ल्ड में, उसको बैलेंस रखने के लिए हमने आईएमएफ बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा, फेयर एंड फ्री ट्रेड को लेकर के हमने बोला 3 चैलेंजेस हैं। उसमें फ्री और फेयर ट्रेड को लेकर के ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि हम एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट थी। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में हमारे सामने 3 चैलेंजेस थे। एक तो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको डेवलप करना है। सो फॉर दैट पर्पज we formed World Bank and International Monetary Fund for monetary stability in order to maintain and balance the liquidity in the global market. Third was free and fair trade, means ट्रेड के रूल्स और नॉर्म्स सारी कंट्रीज के लिए इक्वल होने चाहिए। उसके लिए ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। नाउ we will discuss in the next lecture, ये दोनों जो है बन गए। इनको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो है फॉर्म किया गया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था थर्ड इकोनॉमिक पर्पज के लिए, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया बिकॉज द मेंबर कंट्रीज वर नॉट एग्री। देयर वर सम डिस्प्यूट्स अमंग द नेशंस रिगार्डिंग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, so we could not form ITO। तो उसको अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया, तो उसका एक लूज फॉर्म, एक प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया जिसका नाम रखा गया गेट। गेट का फुल फॉर्म है जनरल agreements on tariffs and trade। ये 1947 में बनाया गया। What is GATT? It is a provisional
form of trade organizations which was supposed to help member countries to make the equal norms and rules for global trade. But again, it was not that successful. Only 23 countries joined it. So, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, एक बार फिर से हम उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक चैलेंजेस में 3 चैलेंजेस: मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड. अब उसमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए हमने बनाया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बनाया वर्ल्ड बैंक. ट्रेड के लिए हमने सोचा कि हम बनाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मेंबर कंट्रीज एग्री नहीं है. कुछ मेंबर कंट्रीज, ओनली 23 मेंबर कंट्रीज ही एग्री हो पाए. लेकिन अब 23 दुनिया में उस समय भी 150 के आसपास तो देश होंगे, तो केवल 23 कंट्रीज के उससे बनने वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता था. लेकिन फिर भी वो बना, तो एक प्रोविजनल था. और इसको बोला गया गैट. सो गैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल ब्रदर ऑफ WTO. तो इसमें केवल गुड्स के ट्रेड को कवर किया गया. गुड्स के ट्रेड की मतलब उसमें सर्विस ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या है, उनको कवर नहीं किया गया. इट ओनली कवर्ड गुड्स ट्रेड एंड डिडंट कवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू ट्रेड. इट डिड नॉट कवर सर्विस ट्रेड. इट डिड नॉट कवर लेबर रिलेटेड इश्यूज, कि लेबर के इनफ्लो और आउटफ्लो को लेकर के क्या है. लेकिन फिर भी गेट जो है एक तरीके से 23 मेंबर कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट था. उसके बाद चूंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उस दौर में, कोल्ड वॉर के दौर में, फ्रॉम 1950 टू 1990, इसका कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल नहीं है. लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड इफेक्टेड हो रहा है. बहुत सारे कंट्रीज बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए ट्रेड कर रहे हैं. पावरफुल कंट्रीज अपने ट्रेड रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो इंपोज कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन which has the power or authority to impose equal norms and rules for global trade. बाद में fast forward to 1980, से 1990 के बीच फिर से इकोनॉमिक चेंजेस का एज आएगा. ग्लोबलाइजेशन is taking place again. तो अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम आ रहे हैं कि कंट्रीज ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो उसमें जरूरत है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और जो क्लोज्ड मार्केट है वो भी मार्केट ओपन हो रहे हैं. तो फ्री मार्केट के लिए जरूरी है कि ट्रेड के नए रूल्स आने चाहिए. इसकी वजह से 1987 में जो है पहली बार उरुग्वे में ट्रेड को लेकर के कंट्रीज के बीच में फिर से टॉक्स शुरू हुई. उसको उरुग्वे राउंड टॉक्स बोला जाता है. इसका एंड होगा, लंबे कई सालों तक चली थी डिस्कशन, 1994 तक. वहां मोरक्को का एक शहर है, उसका नाम है मराकेश, MARR, मराकेश. मराकेश एग्रीमेंट जो है शाइन किया गया. उसी मराकेश एग्रीमेंट के जरिए जो है WTO एग्जिस्टेंस में आएगा. फिर से समराइज करते हैं इसको. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद हम कह रहे हैं कि एग्री नहीं हुए हैं. गेट बनाया गया. गेट प्रोविजनल था, ओनली 23 मेंबर कंट्रीज हैं. उसके बाद जब 80 से 1990 के बीच में दोबारा से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, क्लोज्ड मार्केट आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्री मार्केट, सॉरी,
सॉरी। तो अब फ्री मार्केट में जरूरी है कि फ्री ट्रेड को लेकर के इक्वल नॉर्म्स रूल्स होने चाहिए। उसको लेकर के कंट्रीज के बीच में डायलॉग्स विल बिगिन इन 1807 which is known as Uruguay round talks from 1987 to 1994. Finally, the member countries founders agreed to sign agreement called Marrakesh Agreement, and the World Trade Organization came into existence. Now, this is the historical background. The second, we try to understand WTO and fundamental principles of World Trade Organization. Came into existence in 1994 with the Marrakesh Declaration Agreement. इसमें जो है WTO का मेन जो पर्पस था, एक मल्टीलैटरल ट्रेड स्टैब्लिश करना, एक मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम बनाना, नो डिस्क्रिमिनेशन, एनी members. मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, मल्टीलैटरल मतलब ऐसा ट्रेड सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा ट्रेड पार्टनर्स हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो या दो से जितने भी ज्यादा ट्रेड पार्टनर्स हों, दे विल बी इक्वली ट्रीटेड। कहने का मतलब ये है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्पज डब्ल्यूटीओ का यही है कि फंक्शन एज अ मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी अलाउड टू एनी मेंबर कंट्री। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि पावरफुल कंट्री कहे कि मान लीजिए उसकी पावर ज्यादा है, एक्सपोर्ट करने की पावर ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये नहीं कि वो ट्रेड के रूल्स अपने हिसाब से इम्पोज कर दे किसी पुअर कंट्री पे या अंडर डेवलप्ड कंट्री पे। तो ये डब्ल्यूटीओ का बेसिक पर्पस। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी है, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब डब्ल्यूटीओ, हाउ डब्ल्यूटीओ विल इंप्लीमेंट इट through its fundamental principles. Fundamental principles. इसमें तीन या चार प्रिंसिपल्स पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं डब्ल्यूटीओ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। पहला है reducing custom duties on goods and services। क्या था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था। Half of the world was closed market system and half of the rest of the world was
एक फ्री मार्केट सिस्टम। तो दोनों के बीच में ट्रेड को रिड्यूस करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया जाता था। अब ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या किया गया कि क्योंकि हमने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट ट्रेड के मामले में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है वाया कस्टम ड्यूटीज। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज द मेंबर कंट्रीज विल रिड्यूस द कस्टम ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट। इसको डिक्रीज करना है, इसको रिड्यूस करना है और एक स्टेबल फॉर्म उस पर लाना है। ये इसका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था वो है प्रोहिबिशन ऑन कोटा सिस्टम, क्वांटिटेटिव कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम से मतलब यह है प्रोहिबिशन, इसको बंद करना है। कोटा सिस्टम का मतलब है कि पहले यह होता था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम हर कंट्रीज दूसरी कंट्री पे प्रोहिबिशन कर देता था कि हम एक साल में तुम हमको इतना ही गाड़ी बेच सकते हो, या एक साल में यू कैन ओनली सेल अस दिस मच। देयर वाज ऑलवेज अ लिमिट ऑन हाउ मच वन कैन इंपोर्ट एंड हाउ मच वन कैन एक्सपोर्ट। उसको कोटा सिस्टम बोला जाता है, क्वांटिटेटिव कोटा सिस्टम। इसमें कहा गया है कि कोटा सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। हालांकि अभी भी इस पर डिस्कशन चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं इट्स नॉट नेसेसरीली दैट they have been implemented by member countries. There is still some disputes and controversies among the nations, but these are the fundamental principles. These are the ideals and visions what the World Trade Organization expects from the member countries, from the world. These are two important. The third important principle is MFN status, most favored nation status. What does it mean? We will try to understand it through an example. MFN status की कॉन्सेप्ट ये है वर्ल्ड के बेसिक प्रिंसिपल के अंडर में कि कंट्री ए विल ट्रीट कंट्री बी सेम एज कंट्री इट ट्रीट्स कंट्री सी। मतलब सपोज इंडिया का ट्रेड है ब्राजील के साथ, तो इंडिया का ट्रेड है अर्जेंटीना के साथ, तो इंडिया ब्राजील के प्रोडक्ट को उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से वो अर्जेंटीना के प्रोडक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। व्हाट इट मींस इज एवरी कंट्री विल बिहेव द सेम वे विद ऑल कंट्रीज। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि इंडिया मान लो ब्राजील के साथ ट्रेड कर रहा है, अर्जेंटीना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो दोनों के साथ उसका बिहेवियर सेम रहेगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस की तरह। इसके दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन की कॉन्सेप्ट भी आती है कि इंडिया ब्राजील के साथ वैसे ही ट्रेड करेगा जैसे अर्जेंटीना के प्रोडक्ट को कर रहा है, लेकिन देयर विल बी टू एक्सेप्शंस। दो एक्सेप्शंस हैं। पहला है GSP की कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है FTA एग्रीमेंट्स, bilateral agreements। इसको समझने की कोशिश करते हैं। GSP का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि हमने MFN स्टेटस के अंदर बोला कि every country will behave the same way just like it behaves with other countries, but there will be two exceptions. Generalized system of preferences। इसमें क्या है कि WTO ने ये एक्सेप्शन बना के दिया है कि कोई कंट्री किसी कंट्री को ट्रेड में प्रेफरेंस का रूल दे सकता है।
खोज के लिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि इंडिया के आईटी सेक्टर को अमेरिका में प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया को जीएसपी का स्टेटस दे रखा था। अभी इस पे डिबेट भी है आजकल। करंट डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट वांट्स टू abolish it. So I'm not updated yet. They abolished or not, but he's constantly been saying that we need to abolish India from GSP. इसका पर्पज ये होता है कि कोई स्पेशल रिलेशन हो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक, तो या फिर कोई बहुत ज्यादा गरीब कंट्री है, वो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दिया जाए किसी मतलब रिच कंट्री में, तो ये सिस्टम उसके लिए रखा गया है। किसी पुअर कंट्री के या स्पेशल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंडिया के आईटी सेक्टर को जैसे यूनाइटेड स्टेट में प्रेफरेंस दिया जाता है। एक एक्सेप्शन ये है एमएफएन स्टेटस का। ऑल कंट्रीज विल बी ट्रीटेड इक्वली बट दीज टू, बट जीएसपी एंड बायलैटरल, मतलब इसमें अलग एग्रीमेंट का मतलब जैसे एफटीए या कॉमन मार्केट, ये क्या है इसको समझते हैं। There are two exceptions of MFN status. One is generalized system of preferences and second is different agreements. FTA में क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमने WTO में बोला है कि सारे कंट्रीज आपस में सबके लिए नॉर्म्स, ट्रेड के नॉर्म्स वगैरह इक्वल होंगे, रूल्स और नॉर्म्स एग्रीमेंट सब बराबर होंगे। लेकिन WTO ने मेंबर कंट्रीज को इस बात की के लिए permitted, WTO has permitted its member countries that they can form their own agreements, which is called free trade agreements or common market और अदर सेपा, इस तरीके से अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट बना सकते हैं। ये इस बात की परमिशन मेंबर कंट्रीज को मिली हुई है। एफटीए अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि जैसे सार्क एक एफटीए है, सार्क कंट्रीज जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज, उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है। तो अब इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है सब, और साउथ एशिया के साथ भी करता है, तो और दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है, इकोनॉमिक ट्रीटमेंट। जैसे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ प्रोडक्ट को ट्रीट करेगा वैसे ही इनके साथ भी करेगा। लेकिन इंडिया ने लैटिन अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, सार्क कंट्री के साथ किया है। तो इन दिस कंडीशन अगर दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट साउथ एशियन कंट्री से आना है और एक ब्राजील से आना, सेम प्रोडक्ट चीनी है, तो इंडिया कैन गिव प्रेफरेंस टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज। चीनी मंगानी है, इंडिया को शुगर मंगाना है, तो ब्राजील के बजाय पाकिस्तान से मंगा सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट दिस इज एन एग्जांपल कि एमएफएन एफटीए कॉमन मार्केट, जैसे यूरोपियन यूनियन एक कॉमन मार्केट है, कि मतलब मार्केट के जो रूल है वो पूरे यूरोप में एक जैसे हैं। उस पर हम यूरोपियन यूनियन में जब यूरोपियन यूनियन को समझेंगे तो we'll try to understand what common market is, what different economic agreements are. These are the exceptions of, these are the fundamental principles of functioning of World Trade Organization. What was 3? Reducing custom duties. Second was prohibiting quota system. Third was MFN status. MFN status, two exceptions: GSP, generalized system of preferences. Second was bilateral agreements like common market or free trade agreements. These are basic principles of World Trade Organization and the way member countries of World Trade Organization behave with each other. Now, the ministerial conferences. Since I said the purpose of
World Trade Organization is to function as a platform for multilateral trade system. So, in order to, and I talked about the fundamental principles of World Trade Organization. In order to implement all those norms, all those agreements, member countries do conferences every 2 years. So there have been 11 ministerial conferences till now. The 12th ministerial conferences was scheduled in June 2020, but because of corona pandemic, it was suspended. Every 2 years, member countries meet in different places to talk about the pending issues related with labor, environment, agriculture, intellectual property rights. Total 11 conferences have been so far. The last was in 2017 in Buenos Aires, Argentina, and the latest 12th was scheduled in Kazakhstan, Nur Sultan, Kazakhstan, but it was suspended because of corona pandemic. There are some important conferences which we need to remember, and first is Doha Summit. It happened in 2001. It was the fourth trade summit. Why it is considered one of the most important summits? Because first time in this summit, agriculture subsidy issue came into existence, was talked. The issue of agriculture subsidy, which we'll talk in this issue sections, was basically developed countries and developing countries were discussing the issue of agriculture market access. Developed countries want to access the developing countries' agriculture market, but the developing countries has some problems because of these issues. In developed countries, the farmlands are bigger and the farmers are rich, but if we give the developed countries agriculture companies full access into our markets or Brazilian markets or Indonesian markets, what happens is our farmer will have fewer access to market, which is a crucial issue for developing countries. So first time agriculture subsidy issue came into Doha Summit, which we will talk about what is actually that issue, how many types of agriculture subsidies are classified by WTO, what is allowed 100%, what is not allowed. So in this summit, developing countries got some success to convince World Trade Organization to give them permission for giving give their farmers some subsidies. We will talk about Doha issues in details when we talk about the current issues facing WTO, but right now we are going to discuss the important issues, which will include the agriculture issues discussed in World Trade Organization. There are 4 important issues currently, 4 hot issues discussed in World Trade Organizations, where developed countries and developing countries have some disputes. We have classified the issues into 4 different topics. First is agriculture subsidy issue. Second is
biotechnology related issues, basically biotech issues or genetically modified organism issues, GMO issues. Third is environment related issues. Fourth is labor related issues. Also, these are four important issues where developed and developing countries have difference of opinions. So they are talking, trying to sort it out. We will try to discuss every topic. We will try to create a basic understanding of what are those differences among developing and developed countries. First, we will discuss the agriculture subsidy issue. Agriculture subsidy issue it's a complicated issue. Because first complication is the difference of opinions among developing and developed countries regarding the concept of agriculture subsidy. Agriculture subsidy में क्या आता है, क्या नहीं आना चाहिए, इसको लेकर के कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है. जैसे अब पहले हम समझेंगे कि WTO ने एग्रीकल्चर सब्सिडी को थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज में डिवाइड किया है. द सब्सिडी इज कॉल्ड बॉक्सेस, डिफरेंट बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स. उसके अलावा एक रेड सब्सिडी भी है, बट मेनली तीन बॉक्स को इंपॉर्टेंट मानता है. रेड सब्सिडी मतलब which are completely banned from the World Trade Organizations. So these are three important subsidies which are permitted in WTO's platform. Green subsidies, green box का मतलब है ग्रीन बॉक्स में WTO ने उन सब्सिडीज को रखा है जिन पर कोई अपर लिमिट नहीं है. मतलब कहने का यह है कि कोई किसी पर्टिकुलर WTO के मेंबर कंट्री की गवर्नमेंट इस बॉक्स के अंडर रखे गए सब्जेक्ट में कितनी भी सब्सिडी अपने यहां लोगों को, अपने फार्मर्स को दे सकती है. दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी. इसमें मेनली जो है दो चीजों को रखा गया है. एनवायरमेंटल सब्सिडी और रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब मैं कह रहा हूं कि ग्रीन बॉक्स में एनवायरमेंटल सब्सिडी और रिसर्च एंड ट्रेनिंग को लेकर के रखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि सपोज करें कि कोई फार्मर ऐसी क्रॉप और ऐसी कोई फसल उगाना चाहता है जो इन्वायरमेंट के पर्पज से बहुत लाभदायक है. It's very beneficial for environmental purpose or environmental friendly crops, wants to grow environmental friendly crops. So WTO will not have any upper limit on that subsidy. Government can give as much subsidy to that particular farmer as they want. Research and training में भी वही है. Suppose कीजिए कि कोई फार्मर इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाना चाहता है. उसके लिए वो रिसर्च एंड ट्रेनिंग का एक पार्ट है. ट्रायल बेस पे किसी ऑर्गेनिक फार्मिंग को चेक कर रहा है. तो उसमें अगर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस बात का डर है कि भाई प्रोडक्शन कम हो सकता है.
if there is fear that production is going to be reduced under this organic farming research and training, government can give as much subsidy to that farmer. There will be no upper limit because it is in green box, under this green box subsidy. अब दूसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी. ब्लू बॉक्स सब्सिडी में, ब्लू बॉक्स सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ ने किस तरीके से डिफाइन किया है कि वो सब्सिडीज हैं जिनको प्रोडक्शन कट होने की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान है उसको सब्सिडी की परमिशन है. मतलब कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. अभी हरियाणा में राइस फार्मिंग होती है मान ली, और उसकी वजह से हरियाणा फार्मर्स आर रिच, they earn a lot of money because of rice farming. But what happens in future, suppose because of the decline of underground water, the irrigation becomes a problem. So governments tells the farmers that you have to cut the production because of the water scarcity issue. So their production will be cut off. So they will be paid a compensation in the form of blue box subsidy. उसमें if Haryana government or India government of India gives subsidy to farmers, that will be permitted under blue box. Third is amber box. Amber box, when I talked about the Doha summit, that Doha summit became a huge platform because of the different opinions among the nations, developing and developed nations. One of the issues was amber box subsidies. These are also known as trade distorting subsidies. It can be asked in preliminary, which of the following WTO subsidies are known as trade distorted subsidies? They come under amber box, जिसमें ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज को लेकर के डिस्प्यूट है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी जाती है, या मान लो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी गई किसी फार्मर को या किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, या फर्टिलाइजर पे दी गई. WTO considers these kind of subsidies under trade distorting subsidies, the subsidies which are trying to distort the basic norms of trade. So the purpose of putting them into a different box, amber box, is to end them gradually, because the WTO wants to end these kind of subsidies in future. These are three different types of. There is another red subsidies, with kind of subsidies which are completely banned. So now this was the first issues on WTO platform which we talked about. Second is GMO, genetically modified organisms, basically crops. Must have heard, everybody has heard about BT cotton, BT brinjal, Bacillus thuringiensis cotton. They are genetically modified crops. The issue here is many developing countries have problem with genetically modified organisms. First of all, the GM crops are produced by the developing pharma companies, the developed countries pharma companies, farm companies, in American companies, European companies. They produce genetically modified crops and they sell them into developing countries. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की एक तो जैसे उनका सीड नहीं होता, यानी आपने क्रॉप उगाई, हर साल आपको सीड खरीदना है, एक ये इश्यू है. दूसरा है
कि दूसरी कंट्री में वो वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां का एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। तो इस चीज को लेकर के, और डेवलप कंट्री चाहते हैं कि जीएम क्रॉप्स को भी नॉर्मल क्रॉप्स की तरह ही ट्रीट किया जाए ट्रेड में। उसको, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम है। वन ऑफ द इश्यू इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। डेवलप्ड कंट्रीज wants genetically modified crops to be treated as the others crop on WTO platforms, while developing countries has some objections because of biodiversity, environmental issues, and the seed issues. Also, some of the health issues. Because this is one of the most controversial topics that nobody knows. I mean, there are research that they are being sold in the Western markets, and they are not affecting any health to any significant level. But there are still issues. The developing countries are not convinced for genetically modified crops to be treated as normal crops. That's one of the issues related with genetically modified crops. Second is environment related laws issues. What actually is this? Now, डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में या किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में एनवायरमेंटल लॉस का उतना ओबे नहीं किया जा पाता है जैसे कि आप तो। और डेवलप्ड कंट्रीज में दे आर बीइंग फॉलोड रिगोरसली बिकॉज दे आर रिच कंट्रीज. So this is one of the disputes between two different countries. Developed countries wants WTO to impose the stricter environmental laws in the manufacturing sector and in farm sectors. जैसे कि use of chemicals. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. Insecticides, chemical insecticide in crops. In last 7 or 8 years, European Union banned the import of mango from India because of the excess use of insecticides in the mango crops in India. That was one of the disputes between European Union and India. So इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का ये लॉजिक है, ये आर्गुमेंट है कि उनके पास लैंड इतनी ज्यादा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एनवायरमेंटल लॉस को इतनी अच्छी से ओबे नहीं कर सकते जितना डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं. तो इसमें जो है अभी भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाया है कि एक सेट नॉर्म्स क्या होना चाहिए. And hence developing countries, because they do not have capacity, they want some compensations and exceptions. Fourth important issue on WTO platform is labor related dispute. इसमें क्या कि 1995 में जब WTO आया, वो एलपीजी का दौर था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का. तो WTO, we talked about GATT in the section of historical background of WTO. उसमें हमने कहा था GATT only covered goods trade, but WTO covers goods trade, service trade, intellectual property rights, and labor flow. अब 1990 में ये हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, गुड्स और सर्विसेज के फ्री ट्रेड को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेबर के फ्लो को लेकर के एक दिक्कत. बिकॉज वेस्टर्न मार्केट्स presented
bigger opportunities for the people in developing countries. And developing countries like Mexico, China, India, Indonesia, they have a lot of populations. So उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेबर इनफ्लो था, लेबर रिलेटेड इश्यूज में क्या है कि कंट्री जैसे चाइना है, इंडिया है, यहां लेबर जो है चीप लेबर है. चीप लेबर में यह है कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी चाइना में जाके, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती है. और ज्यादातर कंपनीज 90s के बाद इंडिया चाइना में आती चली गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ चीप लेबर. तो ये एक इश्यू बन गया कि कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उनको बाहर ले जाने लगी, और इसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता चला. ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि भैया आप कि WTO को लेबर कॉस्ट को लेकर के कुछ नॉर्म्स बनाने होंगे और कुछ इक्वालिटी लानी होगी, ताकि कंपनी जो है चीप लेबर के चक्कर में दूसरी कंट्रीज में ना जाए. उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफी ज्यादा नुकसान है. और ज्यादातर कंपनीज 90s के दौर में चाइना चली गई. अभी कुछ कंपनीज 2008 के बाद इंडिया भी आनी शुरू हुई. और एक तो ये इश्यू है लेबर को लेकर. दूसरा चाइल्ड लेबर को लेकर के भी इश्यू है. लेबर में दो इश्यूज है, चीप लेबर, चाइल्ड लेबर. चीप लेबर में है कि जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज है वहां लेबर चीप है, जिसकी वजह से एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं सेटल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो रहा है. दूसरा है चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर का है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चाइल्ड लेबर के उससे बनाए जाते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको बैन कर दे. जैसे रिसेंटली व्हाट हैपेंस, द ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोइंग ऑन. Recently, United States of America has banned one company by alleging that company is manufacturing those products by using child labor in Xinjiang region of China. Child labor को लेकर के उनका एक डिस्प्यूट है. दूसरा इसमें एक इशू छूट गया है, बिकॉज एक दूसरा और ट्रिप्स करके एक था, उसको हम अलग से डिस्कस करना चाहते थे, तो लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इश्यूज में 4 इश्यूज के अलावा एक IPR का इश्यू भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू क्या है कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनकी MNCs जो हैं ज्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका they allege that the developing countries are misusing their intellectual property rights. इसका एक एग्जांपल हम देने की कोशिश करेंगे इंडिया के से प्लेटफॉर्म से. 2013 में एक कंपनी थी नोवार्टिस, नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन या नॉर्वे की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कैंसर के ड्रग्स बनाती है. इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने उसका जेनरिक वर्जन मार्केट में उतारा. तो कंपनी ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी कि दिस कंपनी इज यूजिंग आवर प्रोडक्ट विच इज अंडर आवर पेटेंट. तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसको जो है वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर रेट. वो एक एग्जाम्पल था. फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का ये एलिगेशंस है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की चीप कंपनियां हैं वो उनके पेटेंटेड प्रोडक्ट्स का जेनरिक वर्जन विदाउट परमिशन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसमें कई बार उनके अगेंस्ट जो है फाइल किया जाता है कि भाई रेट फाइल की जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, इसको रोका जाना चाहिए. These are some of the important issues currently being discussed at the ministerial conference in every 2 years on WTO platforms. The 12th ministerial conference was suspended because of corona pandemic in June, and it will happen maybe in the next years. So this is
holistic overview of World Trade Organization. Some of the facts I would like to mention for the prelims examination. It's an interesting fact about the World Trade Organization. It was founded in 1995, as we talked about it. Total number of members are 164. Afghanistan is the last member. He joined in 2016. अफगानिस्तान लास्ट मेंबर है जो 2016 में WTO ज्वाइन किया था. टोटल मेंबर आर 164. इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है. लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने शुरू में बता दिया था, बट वी आर स्टिल मेकिंग इट क्लियर. The WTO is not a UN specialized agency. We mentioned that World Bank and International Monetary Fund are United Nations affiliated agencies, specialized agencies. But United Nations, the World WTO is independent agency. It is not under United Nations. It has been asked in many state civil services and civil services examinations preliminary. Like given 4 organizations and asked which of the following is not the UN specialized agencies. So this is about World Trade Organization. In the next topic we are going to discuss about World Bank and International Monetary Fund. We have given the basics about the Bretton Woods, WTO, the purpose, historical background. So we will talk about them in details in the next lesson. Thank you very much.